Jai Hind दोस्तों, welcome back to PDF classes. We have again come up with another beautiful video related to vocabulary for you. And you know, as our way of learning the vocabulary that you know very well, we try to learn the vocabulary by the link word, means to say by the connection. And this is the really the best way to learn vocabulary, because there's a hundred and thousands of the vocabulary you have to learn for your exams. And how can you try to if you really want to cover the entire portion of the vocabulary, then you have to work on this part, because this way of learning this type of the manner, or as I'm going to tell you in this video, this is really going to very beautiful, because the connection, as we discussed as usual till now, we have completed 16 of the video. It is going to be 17, and we also again do or completed 10 of the vocabulary from another of the portions. And you know that we have covered previous 10 year previous analysis of the all the papers of the vocabulary. So you have to remember that we have to just learn vocabulary by the connection. And so let's get start our video. And also you have to make, or I'm going to say that you have to prepare your note by yourself. Don't try to have the PDF. If you want, then I upload on the link, you can get the link, but don't go for the PDF. You have to write all the vocabulary one by one, because you know this is the really very beautiful way. If you are writing all the things by your hand, then it is gonna be learn in your mind and stuck in your mind for always. So okay, that's all for today. Now let's start our video. The very first question, as you see, the question is perched. द पर्च्ड, पर्च्ड मीन्स टू से सूखा, ठीक है। पर्च्ड जो वोकेब होता है, इसका मतलब होता है सूखा। तो अब इसको हमें लर्न करना है। हाउ कैन वी ट्राई टू लर्न दिस वोकेब? सो वी हैव टू जस्ट रिलेट, डोंट ट्राई टू मग अप द थिंग्स। जैसे कि हमने कहा कि पर्च्ड, पर्च्ड को हम क्या करेंगे? पर्च्ड को मैंने बनाया पर्च, पर्च यानी पर्चा, मीन्स टू से मैंने कनेक्ट किया है बस, ठीक है। पर्च पर्चा, पर्च पर्चा, पर्चा सूखा है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं गए, जिसको आप बोलते हैं ना, आपको एक कागज देता है डॉक्टर आपके हाथ में, और मेडिसिन लिखकर आपको वो दिखाया गया, और आपने देखा अरे ये तो सूखा निकला पर्चा, इसमें तो कुछ नहीं है। सो दैट्स वे आई एम ट्राई टू कनेक्ट दिस वोकैब। पर्च्ड यानी पर्चा, पर्चा सूखा निकला, क्लियर है ना। तो पर्च्ड पर्च, पर्च्ड पर्चा, पर्चा सूखा निकला। सिनोनिम आपके सामने, समानार्थी वर्ड ड्राई, सनबैक्ड सूखा। एंटोनिम बैट, मॉइस्ट, डैम्प, you know very well. Next one is plenitude. Plenitude, I hope you know very well. Plenitude means to say ज़्यादा. Just you have to remember plenitude, because we have already learning the English grammar. So for the CDS NDA, so we have already know about this word. Plenitude means to say plentiful, means to say ज़्यादा, ठीक है ना। कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा दिखाता है, abundance, affluence, ये सब होके उसके आ सकते हैं। तो क्या बोला हमने? प्लेनिट्यूड, प्लेनिट्यूड, प्लान एटीट्यूड, क्या बोला? प्लेनिट्यूड, प्लान एटीट्यूड, ठीक है ना। तो प्लेंटी एटीट्यूड, क्या? प्लेंटी एटीट्यूड। प्लेनिट्यूड क्या बोला मैंने? प्लेनिट्यूड, प्लेनिट्यूड लिखा है, प्लेंटी एटीट्यूड, यानी कि आपका जो एटीट्यूड है हद से ज्यादा हो रहा है, अब मत दिखाइए। कनेक्शन करा रहा हूं, बस खत्म, इतना करना है। प्लेनिट्यूड, प्लेनिट्यूड, प्लेंटी एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड हद से ज्यादा हो रहा है, मत दिखाइए। सिनोनिम समानार्थी एबंडेंस, एफ्लुएंस, और एंटोनिम हो जाएंगे लैक, इनएडिक्वेट, शॉर्टेज। ओके, दैट्स ऑल। तो प्लेनिट्यूड, प्लेंटी एटीट्यूड, प्लेनिट्यूड ट्राई टू लर्न, देखो आपको रिपीट करना है तब तो जाके वो लर्न होगा। क्या बोला? प्लेनिट्यूड, प्लेंटी एटीट्यूड। तो प्लेंटी एटीट्यूड यानी ज्यादा, प्लेंटी का मतलब होता है ज्यादा, प्लेंटीफुल बोलते हैं। तो देखो ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ, ठीक है ना, तो ज्यादा उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इरेटफुल, इरेटफुल मीन्स टू से अकाट या अखंडनीय, बोलते हैं ना, ये अकाट सत्य है, ट्रुथ, एकदम अखंडनीय, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं जिसे खत्म ना किया जा सके, ठीक है, अनरेमेडिएबल, ठीक है। तो अनडिनाइबल, इनडिस्प्यूटेबल, तुम कह सकते हो। इरेटफुल, इरेटफुल का मतलब होता है अकाट सत्य, और इसको अगर लर्न करें कनेक्शन से, इरेट ये रट, इरेट रट, ये रट अखंडनीय है। जो तुम ये रट लगाए हो ना कि मैं दीपा से शादी करूंगा, तेरी शादी नहीं होने देंगे, पापा मना कर रहे हैं समझ लो, लेकिन मुझे पता है कि तू पक्का है। अरे मजाक कर रहा, जस्ट फन, ठीक है। तो देखिए अखंडनीय, ये रट जो तुम लगा के रखे हो, तो ये तुम्हारी अखंडनीय होनी चाहिए कि हम CDS NDA या कोई भी एग्जाम निकाल के रहेंगे। दिस इज ए रेटफुल विस्मय, ठीक है ना। सो यू कैन से ये रट अखंडनीय है। सिनोनिम आप कह सकते हो इनडिस्प्यूटेबल, अनडिनाइबल,
क्लियर, दैट्स क्लियर। तो एंटोनिम यू कैन से एंटोनिम क्वेश्चनेबल, डाउटफुल, आर्ग्यूएबल। ओके, नेक्स्ट वन, ये क्लियर हुआ ना। इरेटफुल, इरेटफुल का मतलब होता है ये रेट अखंडनीय है, ठीक है ना, अखंडनीय है, अनडिनाइबल, किसी को खत्म नहीं की जा सकती, इनडिस्प्यूटेबल, खत्म नहीं, ठीक ना। तो नेक्स्ट वन इज बैक्स्ड। बैक्स्ड आपके सामने है। बैक्स्ड का मतलब होता है झगड़ा करना, तंग करना किसी को। अब बैक्स्ड का मतलब ये होता है झगड़ा तंग करना। तो इसको कैसे याद कर लो, देखो ध्यान से सुना क्या कनेक्शन बनाया मैंने। बैक्स्ड, मेरी ई एक्स दिख रहा है ना, एक्स से, मेरी एक्स बहुत झगड़ा करती है यार। तो मेरी एक्स, बैक्स्ड एक्स, बैक्स्ड एक्स, यहीं से स्पेलिंग से उसी से निकालिया। बैक्स्ड एक्स, बैक्स्ड एक्स, मेरी एक्स बहुत झगड़ा करती है। अरे मेरी नहीं भाई, मैं जस्ट आपको लर्न करा रहा हूँ, ठीक है, तो डोंट टेक इट, ठीक है ना। तो अदरवाइज बैक्स्ड, बैक्स्ड मींस झगड़ा करना। तो सिनोनिम आपका रहेगा डिस्प्यूट, डिबेट, अननॉय, गुस्सा, झगड़ा, एंगर, यू कैन से किसी को परेशान करना, काम, अनकॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट वन क्लियर ना। बैक्स्ड, बैक्स्ड एक्स, बैक्स्ड एक्स, बैक्स्ड वी एक्स जो होता है ना, तो ई एक्स से मैंने निकाल दिया, तो उससे आपको लर्न करना है मेरी एक्स बहुत झगड़ालू है। नेक्स्ट वन हमको करना है बहुत प्यारा वर्क, नोशन। नोशन, ये तुम्हारी धारणा सही नहीं है जो तुम विचार अपने दिल में ला रहे हो ना, कि ये तैयारी छोड़ के कुछ और कर लें। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना, ठीक है ना। तो नोशन, नोशन मतलब धारणा, विचार, आपके विचार सही नहीं है। नो, नो है ना, सन, सन का मैंने पुत्र बना दिया। नोशन या सही धारणा, विचार नहीं है। तो नहीं नहीं बच्चे, ऐसा मत करना, तुम जो कर रहे हो, जो भी करते हो, बहुत बेहतरीन है, अच्छा है, बढ़िया है, बस अच्छे से कीजिए, एक दिन जरूर मिलेगा। तो क्या बोला, नोशन, ये विचार धारणा सही नहीं है। सिनोनिम बियास, आइडिया, और प्री कंसेप्शन, प्रिजम्पशन, यू कैन ऑल्सो से, प्रिजम्पशन इज अनदर वर्ड फॉर दिस, ठीक है। तो एसयू लगा दो, आगे सब मीनिंग आपको बता देंगे। प्रिजम्पशन आप कह सकते हो कंसेप्शन की तरह। नेक्स्ट वन नोशन हो गया ना। नोशन कितना प्यारा है, नोशन, ये तुम्हारी धारणा अच्छी नहीं है। नेक्स्ट वन अटिनरी। अटिनरी को यू कैन सकते प्लान ऑफ जर्नी, वो बोलते हैं ना जर्नी को, वही कहीं पे शेड्यूल बना के हम जाते हैं ना, तो प्लान ऑफ जर्नी आप बोल सकते हो, तो उसको अटिनरी बोलते हैं कहीं जाने से पहले। तो आईटीआई देखना क्या बनाया, अटिनरी, आईटीआई में जाने से पहले प्लान बनाओ। अगर आपको याद हो, इफ यू आर कंटिन्यू टू माई वीडियोज एंड इफ यू रियली वॉचिंग ऑल द सीरीज इन वन बाय वन मैनर, ऑल द वीडियोज, देन यू हैव रिमेंबर वी हैव ऑलरेडी कनेक्ट सच टाइप ऑफ द vocabs. Can anyone tell me? Recall it right now. If you really learning the vocabulary, then itinerant, we have already learned about the same vocab, but the spelling is different, okay ना। itinerant, and those means to say wander, roving, उसका मतलब था घूमना, ठीक है ना। और ये itinerary है, इसका itinerary ITI में जाने से पहले प्लान बनाओ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इनकी शेड्यूल प्लान बनाना, दैट्स ऑल। क्लियर है ना। मैंने क्या बोला, मैंने अटिनरी बोला। अटिनरी आईटीआई में जाने से पहले प्लान बना के जाओ, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कहाँ रहेंगे क्या खाएंगे, ओके दैट्स ऑल। तो सिनोनिम होगा आपका ट्रैवल प्लान, एजेंडा, गाइड बुक। एंटोनिम होगा स्टिलनेस, इंडोलेंस, टॉर्पिडिटी, ओके ना। नेक्स्ट वन अटिनरी हो गया ना, दैट्स ऑल। नेक्स्ट वन इज हार्नेस। हार्नेस मींस टू से कंट्रोल, ठीक है ना, कंट्रोल, मजनू कंट्रोल, अभी तेरा वक्त नहीं है, पेपर आने वाला है, कंट्रोल करना, ठीक है ना। तो हार्नेस कहलाता है, और हार्नेस को आपको कनेक्ट करना है अपनी हार, देखो हार लिखा है ना, हार्नेस, हार, अपनी हार का गम कंट्रोल करो। जो इस बार तुम फेल हुए थे उसको कंट्रोल करो और उसको अपने झोंक दो, दिन रात की मेहनत में आने वाले पेपर में दिखा देंगे कि मुझे गम कितना हुआ, थारा भाई जोगिंदर थारे साथ है, थारे पूरी जर्नी में अगर आप मेरे साथ हो, दैट्स ऑल। तो हारनेस, हार का गम, अपनी हार का गम अपने कंट्रोल में रखना है, किसी से कहना नहीं और करके दिखाना है। तो सिनोनिम क्या होगा उसका, एडमिनिस्टर होगा, दैट्स सॉरी, एडमिनिस्टर होगा, कंप्लाई होगा, रेगुलेट होगा, टैकल होगा और यूटिलाइज होगा, ओके। एंटोनिम होगा आपका मिस अप्लाई, ओके। नेक्स्ट वन इज, तो हो गया ना हार्नेस, हार का डर, अपनी हार का डर कंट्रोल कर ले मेरे भाई, तो फिर सब कुछ हो जाएगा, दैट्स ऑल। नेक्स्ट वन आपके है ऑनररी। ऑनररी का मतलब होता है कार्य के लिए पैसा ना मिलना, आप कोई कार्य कर रहे हो उसके लिए पैसा ना मिलना, ऑनररी बोलते हैं। ऑनररी का मतलब होता है कनेक्शन अगर करना है, देखो ये तो मैं बता दिया, किसी कार्य कर रहे हो पैसा नहीं मिल रहा, देखो ऑनररी, ओनर जानते हो ना, कोई संस्था का कोई ओनर है, ओके ना। जैसे कि आपकी जो पीडी क्लासेस है इसके ओनर आपके आमर सर है, ओके। तो जैसे कोई संस्था का कोई ओनर है, ऑनररी, तो तुम ओनर हो, पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि मान लीजिए
हम लोग वीडियो कर रहे हैं और भी टीचर अपलोड, तो उनको तो पैसा मिल रहा है, लेकिन आमिर सर को पैसा नहीं मिला। क्योंकि वो खुद ऑनर है, ऑनररी, तो बिना पेड किए वो वर्क कर रहे हैं, यानी कि ऑनररी। ऑनररी तुम ऑनर हो, पैसा नहीं मिलेगा। तो देखो, तुम ऑनर हो, पैसा नहीं मिलेगा। तो सिनोनिम आपका रहेगा अनपेड, टिट्युलर, अनऑफिशियल। एंटोनिम रहेगा पेड, इनवाइटेड। इतना प्यारा प्यारा वोकैब है यार, कितने प्यार से कनेक्शन किया है यार। जल्दी से लर्न करो, रिपीट करो, और अगर पसंद आए तो दोस्त के साथ शेयर कर देना, बस इतना है, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बाकी आप पे डिपेंड करता है। ऑनररी, तो ऑनररी होता है आपका ओनर, ओनर को पैसा नहीं मिलता है, अनपेड, अनऑफिशियल, टिटुलर है, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल आप कह सकते हो। नाउ नेक्स्ट फॉर द मूव फॉर द नेक्स्ट वोकैब, द नेक्स्ट वोकैब यू कैन सी ब्यूटीफुल, मैलिफिसेंट। मैलिफिसेंट मीन्स टू से बुरा या हानिकारक। एक बात याद रख लो, जब भी आपको MAL मिल जाए, ध्यान दो, यहाँ पे मैं बोला ना, जब भी आपको MAL मिल जाए किसी भी वोकैब में, रूट वर्ड है, मैं रूट वर्ड का भी वीडियो लाऊंगा, नो प्रॉब्लम, किसी भी वोकैब में यू कैन फाइंड MAL, तो इसका मतलब होता है निगेटिव ही। क्या होता है? निगेटिव, कुछ बुरा ही होगा इसका मतलब। तो यहाँ पे लिखा है मैलिफिसेंट, बुरा या हानिकारक। माला, मैली माला, माला की फी ना मिलने पर वह बुरा हो जाता है। मैली माला और फी, माला की फीस ना मिलने पर वह बहुत बुरा हो जाता है और क्लास से निकाल देता है, चलो निकलो, तुम्हारी फीस नहीं मिली। तो मैलिफिसेंट यानी बुरा व्यक्ति, क्लियर है ना। तो मैलिफिसेंट का मतलब हुआ, और वैसे भी ऐसे लर्न कर लो, मल न्यूट्रिशन होता ना, जैसा मल न्यूट्रिशन वोकैब होता है बायोलॉजी में, ठीक है। तो कहीं भी मल लगा हो, MAL लगा हो, उसका नेगेटिव होता है। तो सिनोनिम आपका माला की, देखो पहले देखो, माला की फीस ना मिली, वो बुरा हो गया, क्या करे, टीचर है, उसको पैसे तो चाहिए बेचारे को। सिनोनिम बैड, क्रिमिनल, harmful, pernicious. Pernicious को if you remember, if you are able to recall the previous video, then we have already learned this vocab. Yes, repeat it if you are able to recall, so recall it right now. Pernicious means to say हानिकारक। पर्नीसियस कैसे कहता? पन्नी, पन्नी यानी पॉलीथीन, पन्नी पॉलीथीन हानिकारक है, जानवर मरते हैं इससे, इंसान का दिक्कत होता है, प्लास्टिक में पीने से दिक्कत होता है, आपको सब पता है। नेक्स्ट वन इज एंटोनिम बेनोवलेंस, जेनरस, बढ़िया, मोडेस्ट, यू कैन से मोडेस्ट आ सकता है, ठीक है, मॉडरेट आ सकता है, ये सब आ सकते हैं। नेक्स्ट हॉलोकॉस्ट, हॉलोकॉस्ट आपके सामने लिखा है, इसका मतलब होता है तबाही, विनाश। तो तबाही विनाश होता है, इसका मतलब कनेक्शन कैसे करना है, ओ हेलो, कास्ट की बात की ना तो तबाही हो जाएगी, यहाँ पे ध्यान रखना, विनाश कर देंगे, विनाश। हम लोग कास्ट की बात करने वाले से नहीं है, बिकॉज वी आर इंडियंस, क्लियर ना। तो हॉलोकॉस्ट, हॉलोकॉस्ट का मतलब होता है ओ हेलो, कास्ट की बात मत करना, हॉलो हेलो कास्ट, कास्ट हेलो, हेलो कास्ट, हेलो कास्ट की बात मत करना, विनाश हो जाएगा, सर्वनाश अभी के अभी। तो सिनोनिम आपके कैटास्ट्रॉफ, डिजास्ट्रस। एंटोनिम सेविंग, रेस्क्यू, सॉरी, लिबरेट। तो ये रहे आपके 10 वोकैब जो हमने किए बहुत ही ब्यूटीफुल वे में, एज यूजुअल हम जैसा कि करते हैं, और इसको भी फिनिश किया। आपके पेपर तक काफी कुछ आपके वोकैब कवर होंगे, और यकीन मानिए आप जितने, पिछली बार मैंने बताया था, मैंने दो तीन वीडियो ही बनाए थे वोकैबुलरी से, उससे 4 पूरे कनेक्शन वर्ड फंसे थे। दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूं, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर एंड वॉच दिस वीडियो एंड रिपीट दिस ऑल इन अ clear manner again and again, so that it is just on your tip of the tongue, so you have to remember. That's all for a day now. आज मैंने idiom phrase का वीडियो डाला था, idiom phrase का भी यही तरीका बताया, मैंने गारंटी का लिया है आपका कि जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ फिक्स idiom phrase आपको दिए जाएंगे, बस उतने लर्न करके जाने हैं। मैं कोई नहीं कह रहा अरे वो टीचर कहते हैं ना 2000 करके चले जाओ, 1500 करके, मैं नहीं बोल रहा ना, मैं आपसे कह रहा जस्ट आपको इतनी पतली कल PDF दिखाई दी ना मैंने, अभी है नहीं मेरे पास, दिखा था, तो आपको केवल 400 से 500 इडियम फ्रेज लर्न करने में दोस्त, उसके बाद आपको कुछ नहीं, आपका काम हो जाएगा, यानी कि आपको वहां पे याद आएगा। और मैंने जो तरीका बताया है तो शायद ही है कोई 1-2 चैनल्स पे बता रहे हो, अदरवाइज यार ऐसा तरीका नहीं, क्योंकि ये तरीका मैंने बनाया है, बहुत ही प्यारा है। मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स की क्या कंडीशन है, क्या प्रॉब्लम है, वो लर्न नहीं कर पाते, दिन भर वोकैब लर्न करने में निकल जाता है, और दूसरे सब्जेक्ट को भी रिवाइज नहीं कर पाते। आप SSC से हो तो आप मैथ और इंग्लिश में ही समय गवा देते हो, तो आप GS नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है ना, NDA वाले, CDS वाले, तो सबकी एक ना एक समस्या रहती है। तो डोंट वरी यार, आई एम हियर, आई ट्राई टू व्हाट वे, मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा, डोंट वरी एट ऑल। और हम यहाँ पे हर चीज को जस्ट देखो, इसके साथ हमने 170 वोकैब कंप्लीट किए। अब बात यहीं पर है कि 170 के आपको कनेक्शन अगर आप कंटिन्यू हो तो बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में यहाँ होने चाहिए। अगर आपने 2 ही बार रिपीट किए होंगे ना, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, सबसे अब तक आपको क्लियर होगा, सब कुछ लर्न होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से इडियम फ्रेज बनाया है, इडियम फ्रेज भी
आपको कंटिन्यू मिलेंगे पूरे कनेक्शन के साथ। एक वीडियो में 14-15 कराता हूँ। दैट्स ऑल फॉर डे, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट पार्ट। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।